नाउ इट कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर मॉड्यूल ए, दैट इज आपका यूनिट 4 ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, डाउन साइड आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन will be based on this particular downside. I'm telling it can be 4 also. One numerical for sure you guys are going to face around the ROA, ROE और आपका net profit, operating profit और आपका your gross profit, and these are the only 5 things which are part of your curriculum. ठीक है, so इसके अलावा the statement based question will be there. ठीक है, so आपका if it comes to the branch profitability, one of the most important, ठीक है, so these two आपका you can assume कि on an average you guys are going to face 2 marks, 2 marks, 2 marks, ठीक है, 6 marks. From here you can assume कि it will be a question for 4 marks because branch profitability is very important for all of us, right? So now we'll come to this particular one. ठीक है, this is your homework guys, so you have to go through this particular one content. This is very simple one. ठीक है, so you can easily memorize these things. ठीक है, role and importance and all. ठीक है, so economic development, financial intermediations and all. ठीक है, again challenges आपका, ठीक है, risk, innovation and all around the profitability things, current structure of Indian banking. Again see what I said कि with every topic they have defined the retail banking. ठीक है, तो उसके साथ उन्होंने इसके ऊपर आपका बात किया हुआ है. ठीक है, numbers and others. Now this आपका प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, सी प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग एफिशिएंसी एंड सक्सेस, सो वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, सो यहां से आपका ये टॉपिक एक्चुअली में स्टार्ट होता है. व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी, दे हैव आस्क्ड सो मेनी टाइम. ठीक है, और डिफरेंसेस बिटवीन आपका प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, ये दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड सो मेनी टाइम आपका. ठीक है, so profitability measure an organization's profit relative to its expenses. It is about the profitability, not about the profit. So profit measure organization's profit around the आपका expenses. Efficiency, organization achieve higher profitability by generating a larger profit percentage from their expenses. Efficiency and profitability, organization with greater efficiency means how you are using your resources and all, derive more profit from their expenses. Profitability serve as a barometer of efficiency. Profitability will serve as a barometer for the efficiency affecting overall organizations a success in the bank itself or for a bank or other also. So these statements are very important. Do not take these statement lightly. ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता था कि ये statement मतलब ये everyone knows about what is profitability, efficiency and all, but they've been asked so many times. ठीक है, हर साल आपको half marks या 1 marks का question मिलेगा. Now it comes to the profitability measure. So how we measure the profitability? So वी हैव 3 मेजर एरियाज. ठीक है, अब ये याद हो गए होंगे सबको. ठीक है, एएफएम ने इतना हमें वो किया है, तो आई होप कि आप सबको ये चीजें याद हो गई होंगी. ठीक है, चलो बताओ गाइस क्या होगा आपका. व्हाट आर द रेशियोज फॉर दीज वन. So you remember, so gross profit आपका, how we calculate gross profit. Gross profit is, it is also known as your आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, like you remember that formula है ना. ठीक है, gross profit is equal to क्या था आपका, net sales minus cost of goods sold. ठीक है, cost of goods sold is equal to direct cost आपका. ठीक है, ये सबको याद हो गया, मुझे इतना याद पता है. ठीक है, सो इसमें कोई चैलेंज नहीं है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका, ठीक है, इट इज आपका ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका, ठीक है, दैट इज कम्स अंडर दिस. नेट प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका माइनस अदर एक्सपेंसेस और प्लस अदर इनकम आपका इफ एनी. ठीक है, अदर आपका इनकम इफ एनी. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका इनका जो मेजरमेंट होगा. ठीक है, यहां से व्हाट दे विल आस्क यू, लेकिन फॉर श्योर दे आर गोइंग टू आस्क. क्यों पूछेंगे आपका, मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं, क्योंकि ये चीज आपको अभी पास्ट में पीपीबी में भी नहीं पूछा गया और ना ही आपको एएफएम के अंदर आपका इसके अराउंड उन्होंने बात किया. ठीक है, नाउ द थिंग इज लाइक एक तो ये हो गया, दूसरा आपको इसी में व्हाट दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका, सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स आपका. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100.
देन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। देन आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन और रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 आपका, ठीक है। तो ये एरिया है जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर इट विल गिव यू 2 मार्क्स, ठीक है, फॉर श्योर आपका, ठीक है। ये आपको जरूर पूछा जाएगा, इधर दे लास्ट की व्हाट इज द आपका नेट प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी एंड व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका, ठीक है। इस तरीके से दे विल गिव यू द क्वेश्चन इन ऑल, ठीक है। ये याद तो है ना सबको आपका, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है। वी हैव डिस्कस, वी ट्राई टू डिस्कस ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। सो टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। देन वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिफ्लेक्टिंग अर्निंग्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या हमने क्या बताया था आपको, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। देन आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है, हाउ वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, आपका रिमेनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, रिमेनिंग इनकम आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस आपका, ठीक है। जो अगर हमने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस एडजस्ट नहीं किया है या अगर हमने कोई आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका ऐड नहीं किया, उसको माइनस करो, मतलब दैट्स ही, लेट्स कैसे ही आपका चाहिए। एवरीवन, you guys have understanding around this particular one now? Definitely I'll come up with a case study, multiple case studies around this one in our module A itself, but still if you have understanding around these particular things you will be able to solve this particular, ठीक है। जैसे let's say a company, एक मैं आपको छोटा सा केस जल्दी से समझाने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से आपका ग्रॉस सेल्स इज आपका लेट्स से 1 करोड़, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट कॉस्ट इज सपोज दैट 30 lakhs, ठीक है। एंड देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सपोज दैट आपका 20 lakhs, ठीक है। एंड व्हाट एल्स वी हैव, लेट्स से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका, ठीक है, एक्सपेंसेस इज सपोज दैट 10 lakhs, ठीक है। दीज आर द नंबर्स, और इवन इट कैन बी बाइफरकेटेड ऑल्सो। ग्रॉस सेल आपका सेलिंग प्राइस इज दिस एंड आपका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आर दिस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका हो सकता है, ठीक है, अगर आज नहीं पूछा है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि दे कैन गो फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आल्सो, ठीक है। सो डायरेक्ट कॉस्ट आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इफ एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज गिवन तो यू हैव टू माइनस दैट पर्टिकुलर वन आल्सो, ठीक है। तो इसी से आपका ना पूरा ड्राइव हो जाएगा। जैसे सपोज दैट इन दिस पर्टिकुलर केस हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, व्हाट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, आपका नेट प्रॉफिट, सॉरी कहाँ गया, नेट सेल्स आपका, ठीक है। इट इज नॉट ग्रॉस सेल्स, नेट if there is no sales written, आपका how we calculate net sales, net sales is equal to gross sales minus sales written and discount, ठीक है। तो अगर ये चीजें नहीं दे रखी हैं तो आपका यही सेम होगा, इट विल बी कंसिडर एज योर आपका नेट सेल्स, ठीक है। सो नाउ नेट सेल्स आपका कितना है, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ माइनस 30 lakhs, ठीक है। सो 30 lakhs मीन्स आपका दैट इज 70 lakhs आपका क्या है, योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हाउ वी कैलकुलेट नेट सेल्स, एक्चुअली मैंने गलती से लिख दिया था, मैं इसको नेट सेल्स ही कर देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी है तो ग्रॉस सेल्स माइनस आपका डिस्काउंट अलाउड माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रॉस सेल्स कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपका, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिस डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो योर आपका ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच, 70 lakh, 70 lakh is your gross profit. Now your gross profit margin will be क्या होगा आपका, 70 lakhs डिवाइड बाय सेल्स कितना है हमारा आपका 1 करोड़ इंटू 100 आपका, ठीक है। आउटकम विल बी योर दिस आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। वैसे ही इफ इट कम्स टू दिस ग्रॉस प्रॉफिट, नाउ यू नो द ग्रॉस प्रॉफिट 70 lakh माइनस operating expense given are how much, 20 lakhs, that means it is 50 lakhs, and your operating profit margin is 50 lakhs divided by 1 crore into 100 आपका, ठीक है। when it comes to the net profit, so operating profit 50 lakhs and other indirect expenses are given 10 lakhs, ठीक है। so net profit of this particular company is 40 lakhs and net profit margin is आपका 40 lakhs divided by 1 crores into 100 आपका। So this is the net profit margin of the company itself. Understood guys? Clear है ना सबको, ठीक है। तो ये areas आपको you have to build basic understanding. We tried
हार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। ओके समझ नहीं आया। ओके कौन है? जितेंद्र सर, जितेंद्र सर आप बीच में ज्वाइन किए हैं क्या या स्टार्टिंग से हैं? देखो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी की, ठीक है, सो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी मतलब उस पर हम बाद में आएंगे, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। हम पहले हम लोग बात करें किसके ऊपर, आपका व्हाट इज प्रॉफिट, हाउ वी कैलकुलेट दी प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ वी कैन मेजर दी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मापा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास तीन कोर एरियाज हैं आपका, एक है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तीसरा है आपका नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपका नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। नेट सेल्स मतलब कुल आपका, मतलब मींस कैसे निकालेंगे इसको, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस डिस्काउंट, अगर ऐसा कुछ है तो हमारा नेट सेल्स कितना था, 1 करोड़ का था, ठीक है। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है डायरेक्ट कॉस्ट, कि जैसे हम ये मार्कर बना रहे हैं, ठीक है, हमने 1 करोड़ के मार्कर बेचे, इस मार्कर को मैन्युफैक्चर करने में हमने कितना खर्च किया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो लेबर है, रॉ मटेरियल है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जहां पे ये बन रहा है उसका खर्चा, मतलब मशीन और आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, ठीक है, वो कितना आपका 30 लाख, ठीक है, ये सब आपका इसमें आएगा। तो हमारा जो आउटकम है दैट इज हाउ मच, आपका 70 लाख। तो 70 लाख का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि जहां पे हमने अभी इसमें सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर रखा है, ठीक है। फिर हम आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, उस बिजनेस को चलाने में, जैसे जो आपका इनडायरेक्ट लेबर है, जैसे ऑफिस जहां पे हमारा अकाउंटेंट जो है या अदर्स, या हम लोग ऑफिस में जो और जैसे कोई ऑडिटर्स को हायर किया उसका खर्चा, वो सब चीजें हमारी कितनी आई, 20 लाख आई। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था आपका 70 लाख, तो 70 लाख माइनस 20 लाख 50 लाख हमारा क्या निकला, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देन हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इसके अलावा जो और खर्चे हैं हमारे, ठीक है, इफ एनी, तो वो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे और कोई अदर इनकम है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा खर्चे थे कितने, 10 लाख के, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकला आपका 40 लाख। तो ये फॉर्मूला ड्रिवन है। अब मार्जिन रेशियो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये हमारा रेशियो है, ठीक है। बहुत आसान है, सब में डिवाइड होगा सेल्स से आपका, ठीक है, सब में डिवाइड होगा आपका सेल्स से, टोटल सेल मतलब जो आपका नेट सेल्स है वो, ठीक है। सो क्या होगा आपका, जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था कितना, 70 लैक्स, सो 70 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, आपका 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ इंटू 100, तो जो भी आउटकम निकलेगा दैट इज योर, आपका क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मतलब रेशियो। इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, मतलब उस रेशियो का मतलब क्या है कि अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट को हटा दें तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जा रही है, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट को एडजस्ट करते हुए, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि अगर आपका जैसे आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, ठीक है, आपकी सेल्स बहुत है, बट सेल्स बहुत अच्छी आप सेल्स करो, बट आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट मार्जिन है, या सपोज दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, दैट मीन्स हम ये जो एक्सपेंसेस हैं इनकी तरफ थोड़ा सा हमें डिसीजन लेना चाहिए। या अगर हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा था, हमारी सेल्स भी बहुत अच्छी थी, बट हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो बहुत कम था, मीन्स ऑपरेशन में आप क्या कर रहे हो, बहुत खर्च कर रहे हो, या अगर नेट प्रॉफिट है तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हो, उनको कम करने की जरूरत है अगर हमें अपनी ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखना है। सो दैट इज द लॉजिक। समझ में आया सर? जितेंद्र सर अभी समझ में आया थोड़ा सा, एवरीवन गाइस? तो जो मॉड्यूल आपका ए का 4th यूनिट है उसका बेस है, उसकी जान है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा। सो यू हैव टू बिल्ड योर आपका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको एक केस स्टडी काइंड ऑफ आप इसके अराउंड देख सकते हो अपने पेपर में, ठीक है। और बाकी का जो 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे कि हम कैसे अपनी ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों सबको? हाँ है ना? किसी का कोई और डाउट है तो आप अपने डाउट बताइए, ठीक है। सो डिफरेंट, हाँ ये जैसे मैंने आपको बोला ना कि हाफ मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट आपका, ठीक है, एवरी टाइम। जितेंद्र सर आपको समझ में आया? कोई अभी डाउट है तो प्लीज बताइए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो प्रॉफिट आपका द एब्सोल्यूट फाइनेंशियल गेन आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, आर डिडक्टेड फ्रॉम टोटल रेवेन्यू, ठीक है, नेट जिसको हम लोग बोलते हैं। कैलकुलेशन आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। आपका नेचर एब्सोल्यूट मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका जनरेटिंग प्रॉफिट इज प्राइमरी गोल ऑफ द ऑल कंपनीज। प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव मेजर असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट, कि हम इतना एक्सपेंस कर रहे हैं तो इतना प्रॉफिट होगा,
अगर हम अपने एक्सपेंस को कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट आपका आएगा, दैट वी जनरली टेस्ट थ्रू दी प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सो कंपेयरिंग प्रॉफिट ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक रेवेन्यू, एसेट्स एंड ऑल, ठीक है, मैट्रिक्स इंडिकेटिंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन, efficiency, ठीक है, हाउ वी इफेक्टिवली वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज इनटू प्रॉफिट। तो अगर रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन, यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइजेशन क्या आ सकता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अनदर्स, ठीक है। प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग आपका, ठीक है। प्रॉफिट इन बैंकिंग, बैंक एम टू अर्न मोर देन देयर एक्सपेंसेस थ्रू रेवेन्यू सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट on loan, fee-based services while managing interest spread between asset and liabilities, ठीक है। Profitability in banks, ठीक है, profitability आपका interest margin, ठीक है, differences between interest earned and interest paid which is also known as NII, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NII, ठीक है, इनफ्लो, इंटरेस्ट इनफ्लो माइनस इंटरेस्ट आपका आउटफ्लो, ठीक है। NII से ही आप निकालते हो NIM, ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मार्जिन कैसे निकलेगा, NII डिवाइड बाय एवरेज एसेट आपका, ठीक है, एवरेज एसेट्स, ठीक है, इससे हम लोग निकालते हैं NII। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, एसेट के द्वारा किस तरीके का रिटर्न दिया जा रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट आपका, ये पुराने मेजर हुआ करते थे, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। सो मेजर प्रॉफिट फ्रॉम टोटल एसेट, ठीक है, सो आपका प्रॉफिट टोटल एसेट एंड आपका प्रॉफिट टोटल इक्विटी आपका। तो इस तरीके से जो एरियाज बने, इनके फॉर्मूलाज भी लिखे होंगे कहीं पे, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट आपका, रिटर्न विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन अराउंड दिस, जस्ट डू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज आपका, ठीक है। सो जैसे रिटर्न ऑन प्रॉफिट कैसे, रिटर्न ऑन एसेट कैसे निकालते हैं हम लोग, हाउ वी कैलकुलेट रिटर्न ऑन एसेट, नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट, ठीक है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आपका, रिटर्न ऑन एसेट इनटू लिवरेज रेशियो, ठीक है। लिवरेज रेशियो कैसे निकालोगे, बैंक एसेट डिवाइड बाय बैंक कैपिटल आपका, ठीक है, इक्विटी, कैपिटल मतलब इक्विटी, ओनर्स का पैसा आपका। सो दीज प्रॉफिटेबिलिटी मेजर हेल्प एसेस बैंक ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फंक्शनल हेल्थ, ठीक है। बट आज के डेट में ना देखो, ये आपका ROA एंड ROE ये आपको बैंक लेवल का आउटपुट बताते हैं। इफ वी हैव टू स्टडी अ सिंगल आपका सेगमेंट, जैसे इफ यू हैव टू स्टडी रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग का, और इवन इन रिटेल बैंकिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, सो फॉर दैट वन we use RAROC, ठीक है, बट RAROC मेथड इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम, ठीक है। अगर जब आप CIB के अंदर आओगे BFM में, वी हैव RAROC, द मेथड जनरली गेट यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है, समझ में आया सबको थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप देखो स्ट्रेटेजीज टू इंप्रूव बैंकिंग ऑपरेशन, ये है आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है आपके 1 मार्क्स में या हाफ मार्क्स में, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज व्हिच बैंक कैन यूज, ठीक है। जैसे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के देखते हैं ना, देयर आर 6 टूल, जैसे इंटरेस्ट इनकम, फी इनकम, और आपका interest income, fee income, one another source of income, and 3 sources of expenses. So we have to maximize the sources of income and आपका minimize sources of expenses. But they are interrelated. If you want to increase your profitability और जो sources of income है उनको बढ़ाओगे, automatically you have to increase your expenses. तो balancing it out is the most suitable area in that particular one. ठीक है. So जैसे यहाँ पे हमारे पास these are the areas through which we can overall increase these particular things, ठीक है. So improve the banking operations, or we can enhance the efficiency in our banking system, so we can achieve the lower cost or the maximum utilization from the resources itself. Understood? तो ये areas जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है. जैसे वेंडर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, बट ये क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है. दीज विल बी क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स, इसलिए आपकी रीडिंग्स ना बहुत लगेगी यहाँ पे, और यूनिट वाइज प्रैक्टिस ऑब्वियसली आई विल इंक्लूड ईच एंड एवरी सब टॉपिक, तो वहां पे ये चीज आपको मिलेगी. स्टेप टू इंप्रूव ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, 100% आपका, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी फॉर 1 मार्क्स ऑल्सो, ठीक है. ये कोई जरूरी नहीं कि हाफ मार्क्स में या आपका 2 मार्क्स में भी हो सकता है. दे कैन आस्क यू दिस पर्टिकुलर थिंग्स, दीज पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है. तो आपको इनको थोड़ा सा गो थ्रू करना है, ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं आपका विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज अराउंड द हिस्ट्री थिंग्स इन ऑल, ठीक है. क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस आपका? So Banking Companies Act 1949 was renamed as Banking Regulation Act 1949 on 1st March 1949 itself, ठीक है. सही है आपका सारा डेट, ठीक है. ये आपका क्या होना चाहिए था, 1 मार्च नहीं था, ये कौन सा था, 1966 और समथिंग ना, इस डेट, इस ईयर के अराउंड आपका, when we generally change the name of
आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सॉरी, बैंकिंग कंपनीज एक्ट टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है. नरसिम्हम कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द लिबरलाइजेशन फेज टू रिकमेंड दी रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर. तो नरसिम्हम कमेटी को हमने बहुत डिस्कस किया ड्यूरिंग द INIFS ऑल्सो एंड अदर्स. स्टेटमेंट 3 आपका, 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, they converted into Imperial Bank, then Imperial Bank and SBI. True. All the 7 subsidiaries of SBI were nationalized in 1959 and remain independent public sector banks today. ये आपका गलत है. They got merged with the SBI itself. आपका ठीक है, उनको हमने SBI में merge कर दिया. Prior to independence, around 600 bank exist in India, but only a few survive post independent. True आपका ठीक है. तो 235 means A only will be right answer for this one. ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन आपका, वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, ये हमने आपका पास्ट में बहुत डिस्कस किए हैं इनको. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, अबाउट द इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस. ठीक है, सो क्विकली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन. कमेटीज याद है ना, नरसिम्हम कमेटी एंड ऑल. So deregulation of interest rate in 1990s led to a complete freedom for bank to set deposit and lending rate. No, there is no complete freedom आपका. They have to, there are RBI oversight. Despite of liberalization, public sector bank continue to dominate the Indian banking landscape, but are gradually losing the market in some extent. Yes, because private sector banks are growing in a faster stage. In instance like the Kingfisher Airlines default, PNB LU scam, ठीक है, highlighted the structural weakness. बिल्कुल सही आपका. ठीक है, 2 and 3, ठीक है, ऑप्शन B should be right answer for this one. ठीक है, easy question again. Yes, चलो नेक्स्ट वन, consider the following statement regarding profit and profitability. ठीक है, this question can be for 1 marks. ठीक है, तो मॉड्यूल ए आपका यूनिट 4, ठीक है, जहां पे मतलब इन एवरी शिफ्ट यू विल सी क्वेश्चन अराउंड प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी. इसके अलावा ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी आपका, हाउ टू इंप्रूव ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, और आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन, और दैट वन केस स्टडी, और थिंग्स अराउंड द ROA एंड ROE. ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर गाइस? So profitability is measure of efficiency and help assess the overall success or failure of the business. ठीक है, how we are using our assets or the efficiency, ठीक है, to earn what amount of profit, how much we are spending in all, ठीक है, and the overall efficiency of that allocation also, expenditure also. ठीक है, profit refer to revenue generated from deducting any expense आपका. ठीक है, profit refer to the revenue generated before deducting, it is आपका after deducting all the expenses आपका. ठीक है, this is wrong. Net profit is type of profit found on the income statement after accounting. ठीक है, net profit हमारा profit and loss account. ठीक है, income statement is equal to profit and loss account, which is generally part of this one. ठीक है, so option C should be right answer for this particular one. Correct है JP sir? Yes, बिल्कुल सही. ठीक है, चलो. So profit is money left after accounting for after deducting all the expenses आपका. चलो, now this is the question. I want your answer on this particular question. सबसे पहले कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? One question for sure you guys are going to face on this one case study kind of things. ठीक है, and it will be for 2 marks आपका, जहां पे they can ask you to calculate net profit as well as आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन सेम क्वेश्चन, या इन सेम क्वेश्चन दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और आपका नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड अभी तक उन्होंने इसको टच नहीं किया है. दैट मीन्स दे आर फॉर श्योर दे आर गोइंग टू आस्क इन योर आपका RBWM एग्जामिनेशन. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, that comes at the end. तो हमारे पास क्या क्या था, जैसे from where we start this particular one, gross profit equal to net sales minus cost of goods sold. so equal to gross profit क्या हो जाएगा आपका, sales is आपका 1,50,000, 1 lakh से 1 crore 50 lakhs आपका, सॉरी 1 crore 50 lakhs
एंड दिस इज आपका हाउ मच 90 lakhs, ठीक है. सो वन इट इज योर आपका 1.5 CR, ठीक है. अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा बताना मेरे को, ठीक है. एंड इट इज आपका 90 लाख. दैट मीन्स इट इज आपका हाउ मच इट इज आपका इट इज 60 lakhs आपका, ठीक है. 60 lakhs, ठीक है. तो पहला आपका 60 लाख हो जाएगा, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज योर आपका 60 लाख, ठीक है. नाउ सेकंड वन इज आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है. सो इट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट आपका 60 लाख माइनस क्या है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस 30 लाख, ठीक है. 30 लाख. सो इट इज इक्वल टू आपका 30 लैक्स, ठीक है. सेकेंड देन आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है. नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस आपका इंटरेस्ट अदर एक्सपेंसेस, ठीक है. अदर एक्सपेंसेस आपका, ठीक है. अदर एक्सपेंसेस सो इंटरेस्ट टैक्सेस, ठीक है. सो इट इज आपका 10 लाख आपका 5 लाख 15 लैक्स, ठीक है. सो 15 लैक्स, ठीक है. सो दैट मीन्स 30 लाख माइनस 15 lakhs equal to 15 lakhs, ठीक है. So our net profit is how much आपका 15 lakhs in this particular case, ठीक है. अब यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है. Now how we calculate net profit margin, ठीक है. So net profit margin is equal to क्या होता है net profit divide by sales आपका, ठीक है. Net profit divide by sales into 100 if it is in percentage. So what will be your correct answer? 15 lakhs divided by sales was 1.50 CR, ठीक है, crore and into आपका 100. So outcome will be your answer for this one, ठीक है. So if they ask आपका net profit कितना आ रहा है, किसने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है इसका, ठीक है. 10% आएगा ना, 0.1, हाँ 0.1 10% आपका, ठीक है. इट विल बी 10% होना चाहिए, ठीक है. एनीवन, हाँ बिल्कुल सही जिन्होंने बी आपका लिखा है. सो इट इज योर आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है. दिस इज अ केस ऑफ नेट प्रॉफिट. नाउ दे कैन नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है. दे कैन आस्क यू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो, ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच, कितना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 60 लाख डिवाइड बाय 1.5 CR, ठीक है, इनटू 100, ठीक है. आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इफ दे आस्क यू, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है हमारा आपका, ठीक है, 30 lakhs, ठीक है. 30 lakhs डिवाइड बाय 1.5 CR इनटू 100. सो दीज आर द एरियाज, ठीक है, जो आपको फॉर श्योर यू गाइस आर गोइंग टू फेस वन केस स्टडी अराउंड दिस पर्टिकुलर वन. तो बहुत अच्छे से आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों. एनी डाउट आपका, किसी का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट लिख लीजिए, ठीक है. आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दोज वन. एंड व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, फॉर श्योर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. यस, हाँ. So it is आपका 10%, ठीक है. So 10% will be right answer for this one. Next one चलो, अगर clear है. Now we have statement around this 1 2 आपका 3, then आपका 4, then आपका 5 and आपका 6, ठीक है. So 1 2 3 4 5 6. Now what we have to find out correct statement, and these statement are regarding measurement and component of profitability in bank. It is not necessary कि they'll ask you the case study only, ठीक है. तो ऐसा मतलब बहुत बार होता है, they are focusing toward the concept part also, ठीक है. तो ये अब हम लोग गलती क्या करते हैं, एक पार्ट पे करके खुश होकर निकल लेते हैं. ये जो पार्ट है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आपको जो देखने के लिए मिलेंगे एग्जामिनेशन के अंदर. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड दिस वन, ठीक है. सो ROE आपका रिटर्न ऑन इक्विटी and is always equal to ROA in the bank because both are calculated from the सेम नेट इनकम, ठीक है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है. इट इज नॉट आपका ऑलवेज इक्वल इन ऑल, ठीक है. सो अगर हम लोग वैसे नॉर्मल अगर आप जाओगे, सो ROE शुड बी एट हायर साइड आपका, ठीक है. सो ROE इज जनरली हायर देन आपका ROA, ठीक है. सो आपका दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है. Higher leverage always a bank to increase its ROE even if ROE remain constant आपका, ठीक है. Higher leverage means आपका, ठीक है, higher leverage means we are taking more debt, ठीक है. This we have discussed in our आपका AFM examination, AFM also capital structure. So that means we are raising debt. Let's say we borrow money at 7% आपका on an average 100 crores. We landed that 100 crore rupees आपका let's say
the tenure is same आपका, ठीक है, at 12%. तो the difference आपका, your NII is आपका 5%, net interest income is 5%. So what we are doing, we are borrowing money at lower and the return on investment is at higher side, ठीक है. So that is the one. So that is generally known as leverage things, ठीक है. So higher leverage allow bank to increase ROE. Even the ROA can remain this. So statement 2 is 100% true. Loan loss reserve held by bank contribute positively to net profit by reducing tax liabilities and all together. So statement आपका loan loss reserve means your NPAs are increasing. That is not going to contribute anyhow. ठीक है. Cash held in ATM and wallets. Vault is included in asset but does not generate income आपका, ठीक है. Statement 4 is correct है आपका, ठीक है, इसमें कोई दोराई नहीं है, ठीक है. SLR investment usually earn less than the market interest rate, reducing profitability because we invest in आपका government securities and government securities they have less return and all, ठीक है. Next one आपका, a higher portion of liabilities used to fund assets typically indicate a greater leverage. This is also correct. Okay. So 2, 4, 5, 6. Option A only should be right answer for this particular question. Yes. So statement 1 was incorrect. ROE and ROA are not always equal. Okay. Statement 3 was incorrect. Loan losses reserve are a provision against income. So they reduce the profitability and all. Okay. Correct guys? Yes, correct. Very good. Next one. Which of the following statement regarding ROE and leverage in banking? Okay. We'll be practicing question around ROE also. ROE. Okay. So ROE, ठीक है आपका, consider the following statement regarding return on equity and leverage in banking, ठीक है. So we have to find out the correct statements, 7 statements. So please quickly go through the statement and try to answer this particular one. हाँ बताइए क्या होगा. सी आपका, ओके. चलो ठीक है. ROE depend only on bank net income and does not involve its capital or assets आपका, ठीक है. सो नहीं, ऐसा नहीं. It depend on the net income आपका, ठीक है. It depend on net income but it also include that आपका like we can say the other areas आपका bank capital and all, ठीक है. So the second statement, ठीक है, doesn't involve this particular one. So statement 1 is wrong, ठीक है. Statement 2 आपका, when it comes to the statement 2, bank prefer to use liabilities instead of their own capital to purchase more asset आपका, that is something related to leverage things, 100% true. Leverage allow bank to increase a return but it also increases the risk of capital being wiped out if asset value drop, ठीक है. Statement 3 is also correct. Interest rate spread are generally wide, allowing bank to earn higher returns. If it is wide, it will impact negatively आपका, adversely. It should be wrong. Statement 5 आपका, regulatory authorities like RBI, Federal Reserve restrict excessive leverage to ensure banking system stability. Lehman Brothers Bank use a high leverage ratio, which made vulnerable to small decline in the asset. True. Next one आपका, high leverage ratio can lead to greater profit but only if the value of asset remains stable to increase. ठीक है, करेक्ट है. तो आपका 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3 no, तो आपका 2, 3, 5, 6, 7. C should be right answer. ठीक है. Yes, हाँ, people have mentioned C only. ठीक है, very good. ठीक है. So C will be right answer. ROE depend on net income and bank capital. ठीक है. Both आपका means 4 interest rate spread are narrow, not wide. Next one. Regarding the strategies adopted by bank to improve operational efficiency. For sure, one question around this one, around for 1 marks itself, and it is
डुएबल। ठीक है, अगर आप इन स्टेटमेंट को ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपका क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सो प्लीज क्विकली गो थ्रू दिस वन। देयर आर पीपल दोज हु आर सेइंग कि सर क्लास लीजिए प्लीज डेली बेसिस पे। निराली है क्या यहाँ क्लास में? निराली आर यू देयर? यू आर मेंशनिंग इन ग्रुप कि क्लास लीजिए और आप क्लास में है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इन ऐसा बता दिया करो यार औरों को भी, ठीक है, जो लोग ग्रुप में आपका लिखते रहते हैं, जिनको पता नहीं है बेसिकली। बताओ दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस वन? एनीवन? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एक बार आप लोग आंसर बताते हैं तो, बिकॉज सी यू हैव टू बिल्ड दिस हैबिट, आपको रीड आउट करने का हैबिट चाहिए होगा। अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे तभी आपसे बनेगा। ठीक है, सो बिजनेस realignment focus on continuing in all existing business line to maximize profit. It is not necessarily कि आपका हमें सब कुछ आपका कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो इट इज अबाउट कि which segment is profitable और आपका जो काम कर रहा है या जहाँ पे we do have the options and all, we'll go for that one। ठीक है, not necessarily to continue any burden आपका। जैसे कुछ ऐसा हो सकता है if any product is not working, so we have to leave that particular one। if any segment is not working, ठीक है, we have to leave that particular one। ठीक है, so I'll not go for this particular one। channel optimization include enhancing कॉन्टैक्ट सेंटर्स, मोबाइल बैंकिंग एंड एटीएम्स आपका। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज 100% राइट आपका। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज 100% करेक्ट। ठीक है, प्रोसेस कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स एम एट रिड्यूसिंग द यूनिट कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो ऑफ ईच वन। ठीक है, ट्रू आपका। ठीक है, करेक्ट है स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 4 आपका गाइस, स्टेटमेंट 4। ठीक है, so staff productivity can improve only adopting new technologies? No, staff we can do more आपका। come here, see this fellow is very punctual। ठीक है, आपको भी ऐसे होना पड़ेगा। so staff functionality आपका productivity that can improve every areas आपका, not only technology driven and not। technology and automation enable parallel processing of electronic documentation to reduce delays। this can help in this particular area। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका वेंडर मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्रेशरिंग वेंडर्स? नो। प्रोडक्ट बंडलिंग enhance customer retention by offering combined benefits at attracting pricing? True। cross LOB data shared help in creating 360 degree customers? बिल्कुल सही आपका रहेगा। ठीक है, क्रॉस LOB डेटा शेयरिंग हेल्प। अच्छा इस वाले को एक बार देखिएगा। हाँ, क्रॉस LOB लोकल, ओके, improving targets, it seems correct आपका। ठीक है, sophisticated customer segmentation consider आपका psychographics and behavioral factors along with the demographics। ठीक है, sophisticated customer segmentation consider the psychographics and the behavioral factors। हाँ, this is also correct। ठीक है, तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? which is the right answer for this one? okay, why no answer? 2 3 5 7 8 9। ठीक है, 2 3 5 7 8 9, A should be right answer for this one then। ठीक है, if 2 3 5 7, हाँ इन दोनों में से एक होगा, बट हाँ these two statements are bit confusing। A only is the right answer for this one। ठीक है, तो this is also correct आपका guys, please don't। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपका बिजनेस रिलाइजमेंट इन्वॉल्व एग्जिस्टिंग लो margin line of this। ठीक है, then we have 4 1 is incorrect, staff productivity, and 6 1 is incorrect, vendor management is not about the pressurizing and all, so that generally comes under this। ठीक है, चलो next question regarding the factor affecting the profitability of banks in India। so again this is very important one। ठीक है, so you might face number of question around this particular one। ठीक है, so there are very high chances you get these kind of question in your examination and you have to be very careful। huh?
हाँ, ओके ओके, हाँ, हु मेंशन दिस पर्टिकुलर वन, रॉबिन सर, ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन गाइस, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए जरा, ठीक है। सो वी हैव गिवन आपका 3 स्टेटमेंट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन्फ्लेशन हैज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, बिल्कुल, with every money it is involved, ठीक है। So if inflation will increase, obviously it is going to decrease the value of the currency, ठीक है। Operate non-performing assets reduce profitability by increasing operating cost and आपका lower margin, ठीक है, interest margin. There is a negative relationship between deposit and profitability. We have a positive relationship, ठीक है। अगर deposit बढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। वी कैन क्रिएट मोर एसेट, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपका रॉन्ग। सो 1 and 2 आपका ऑप्शन ए ओनली विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट वन, what is the ideal percentage of branch deposit that should be held in cash to ensure better profitability, ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर। I was bit confused about this one, ठीक है, but as per book I have answered this particular one, ठीक है, बताओ क्या होगा, आप लोग बताओ, I just want to check your viewpoint। इससे बाहर नहीं आएगा, मॉड्यूल ए का कंप्लीट कवरेज, ठीक है। एक सेशन हम लोग आपका रिवीजन वाइल वी आर क्रिएटिंग वन अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन, जब व्हेन विल कम टू द फाइनल मैराथन ना, तो वहां पे हम लोग एक और नया सेट करेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको मॉड्यूल मॉक दूंगा, आप उसको पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और बिलीव मी गाइस, इफ यू आर फॉलोइंग दीज थिंग्स तो आपको बिल्कुल इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर गाइस, less than 5%, this A is for this question or the previous one, A, हाँ, okay, that was for previous one, okay, now tell me, because A is not right answer for this one, what I also feel some ways कि आपका कुछ और होना चाहिए, but हाँ, when I comes to your book, मैंने बुक को देखा तो वहाँ पे it was completely different। आपका बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, ब्रांच में कैश कितना होना चाहिए, branch deposit that should be held as cash to ensure better profitability, that means let's say we are raising in our branch, let's say deposit is 100 crore, तो उसका कितना परसेंट हमें कैश में रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हमें आपका एसेट क्रिएट करना चाहिए। तो 99% शुड बी एज पर द बुक एंड ऑल, आपका ओनली 1%, आपका 1% इन लेस देन दैट शुड बी हेल्ड इन कैश, अदरवाइज इट शुड बी डिप्लॉयड इन द फंड्स एंड ऑल, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन डी। नो वन आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वाई सो, ठीक है, थोड़ा एक बार गेस वर्क तो करना चाहिए था। द आइडियल कैश होल्डिंग शुड नॉर्मली बी लेस देन 1% of the branch deposit to avoid ideal funds to keep the bank's money productively deployed and all. So we can create asset and we can have or we can generate some sort of profit from that particular one. Correct है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका this is it, ठीक है। So this is all about your module A, a comprehensive analysis, discussion और आपका सारी चीजें, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द सेशन, ठीक है। So guys, we practice all the 4 modules of module A. Now I'll see you in the evening, ठीक है, and where we will be discussing our module B concept. Module B के अंदर we have the things are easy क्यों होंगे, अगर आपने PPB को अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे चीजें आपकी हैं। C and D आर कंप्लीटली न्यू थिंग फॉर अस, ठीक है, तो वहां पे सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो कंसंट्रेशन मतलब ऑटोमेटिकली वहां पे जाएगा। यूनिट वाइज स्ट्रेटेजी रखना है, ठीक है। मॉड्यूल ए आपका, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक कि 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। रिटेल बैंकिंग के अराउंड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपका फीचर कंस्ट्रेंट में आप चैलेंजेस, इनोवेशंस और द अदर एरियाज एंड ऑल, ठीक है। द अनदर साइड इज आपका जैसे यूनिट 2 और यूनिट 3 के 2 कोर सब टॉपिक्स, यूनिट 4 आपका प्रॉफिटेबिलिटी, अगेन आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके अराउंड देखने के लिए मिलेंगे। सो ओवरऑल आपका वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन इटसेल्फ, राइट। चलो नाउ आई विल सी यू इन द इवनिंग, आपका इवनिंग में हम लोग मिलेंगे और इवनिंग के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग आवर मॉड्यूल बी कॉन्सेप्ट समरी आपका थ्रू द ब्रह्मास्त्र, आई हैव अप दैट सेशन, ठीक है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अराउंड दी आपका कल आपका मॉर्निंग में, तो इस तरीके से। और एक मॉक टेस्ट मैं आपको दे दूंगा, आपका आई हैव गिवन 1 मॉक टेस्ट फॉर द एंटायर आरबीडब्ल्यूएम, ठीक है।
अब एक मॉक टेस्ट मैं आपका और के आपको मॉड्यूल ए का दूंगा, तो इस तरीके से हम लोग आपका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करें आपका, ठीक है। हाँ चरण सर, आंसर आई गॉट योर आंसर वेरी लेट। हाँ चलो, all right then, so this is it from my side. Thank you for joining this session, thank you for watching this session. Bye, take care all, have a nice day, thank you.